question number 1 says that there is a current carrying wire which is carrying the current towards the right eye, and I is what? I is increasing. Okay, so increasing current. Now the first thing we make out that if the current carrying wire is carrying the current towards the right, then above the current carrying wire the magnetic field lines are coming out, and below the current carrying wire the magnetic field lines are going into the plane of the ball. Now if the current is being carried out above, and I take two loops, conducting loop 1 and this is the second conducting loop 2 below. For this loop there is an outward flux which is increasing. What is increasing? Outward flux is increasing. You understand why outward flux is increasing? First, magnetic field lines are coming out. If the current increases, what will happen to the magnetic field strength? Strength of the magnetic field क्या होगा? बढ़ गया ना? Increase होगा ना? Because current increase कर रहा है, तो magnetic field current के ऊपर depend करेगा. So strength of the magnetic field will increase. If the strength of magnetic field increases, then the flux through this loop will also increase. Why? Because flux depends upon the magnetic field. So if B increases, flux will increase. So if the flux increases through any conducting loop, Lenz's law क्या बता रहा है? कि उसमें जो current produce होगा, it will try to oppose that flux. Yes or no? तो यहाँ पर जो current होगा ये loop में, उसके लिए magnetic field will be going into the plane of the. So into the plane of the board अगर current जाएगा, so उसमें current flow कौन सा direction में करता है? It flows in the clockwise sense. So this will allow the current to flow in the clockwise sense. So the same argument goes below. The inward magnetic flux is increasing, so this will send the magnetic field lines in the outward direction. जिसके लिए वो कौन सा direction में current send करेगा? Anti-clockwise direction में send करेगा. Is that clear? समझ में आया या नहीं आया? क्या बुझते पारी बोल रखो नहीं? Is this clear? Next question. Question number 5. केशव बताएगा. Very good. देखो लेंजेस लॉ की बोलছে लेंजेस लॉ बोलছে the rate of change नहीं नीचे आना पड़ेगा এই नीचे কোথায় যাচ্ছে ओके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है इन नॉर्थ पोल हम लोग एक लूप की तरफ लेके आ रहे हैं सो वी हैव लर्नड दैट जब भी हम लोग कोई भी मैग्नेट को लूप के तरफ लेके जाएंगे टुवर्ड्स लेके आने से वो सेम पोलैरिटी डेवलप करता है व्हाई बिकॉज़ इट नीड्स टू रिपेल हां या ना तो अगर सेम पोलैरिटी डेवलप करेगा तो यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा और ये करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है इंडक्शन ना करंट तो इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ये कैपेसिटर करंट प्रोड्यूस कर रहा है क्या नहीं ना तो अगर करंट इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होकर यहां आ रहा है तो पहले दो न्यूट्रल था यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये समझ में आया तुम लोग सिर्फ ये कंफ्यूज कर रहे हो कि इसको सेल की तरफ सोच रहे हो ये तो सेल नहीं है ना क्या साउथ क्यों होगा अरे यार ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये तो मेंशन किया हुआ है ऐसा नहीं है कि इसको देखो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझो अगर हम लोग बार मैग्नेट को यहाँ छोड़ देंगे ना यहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा या तो बार मैग्नेट को मुझे टुवर्ड्स इट मूव करवाना है या तो अवे मूव करना है अगर टुवर्ड्स इट मूव करेगा तो ये रिपेल करेगा सेम पोलैरिटी डेवलप करेगा और अवे मूव करवाएंगे तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये साउथ पोल डेवलप करेगा रेस्ट पोजीशन में कुछ नहीं करेगा समझ आया इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेल नाउ एक ही अरे एक का नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ लूप और थीटा हां ये चार्ट जिनिस अच्छा नाउ open up question number
11 12 একটু তোমরা একটু করো, পরে যদি ডাউট হবে সেটা আমি বলবো। ঠিক আছে সেই ডাউটস কে পরে ডিসকাস করব টিউসডে এই থার্সডে। আজকে একটু কোশ্চেন নাম্বার 19 টা করব। Read question number 19 everyone. Question number 19 is a very important sum. Question number 19 টা important, একটু মন দিয়ে শোনো। Read the question carefully first. তাড়াতাড়ি। Read the question. Question number 19 টা একটু পড়ো তাড়াতাড়ি। With this question number 19 কি আছে বলো? হ্যাঁ সেটা কোথায় আছে? কোথায় আছে? কার হাসি পাচ্ছে? কার হাসি পাচ্ছে? বেরিয়ে যাও ক্লাস থেকে, তারপরে আমি পার করছি। So it says that there is a square loop. All of it is actually obviously 20 centimeter sided. So the magnetic field starts from this region, and this square loop is initially 30 centimeter away from this region. This whole magnetic field region is of 80 centimeter length, and the magnetic field at this point is directed into the plane of the paper. V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 Tesla. Now velocity of the answer 10 centimeter per second. Alright, now question কি বলেছে? বলেছে it is then move towards the right with a velocity of 10 centimeter per second. It goes out of the field. Means यहाँ पर पहले अंदर घुसता है फील्ड के अंदर, और फिर यहाँ पर फील्ड से बाहर निकलता है। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन करना है? सो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द मैग्नेटिक फ्लक्स phi थ्रू द लूप विथ टाइम t. सो पहले तुमको ये समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा, और कहां से कहां तक चेंज करेगा। थोड़ा ध्यान से देखो। इसके लिए हम लोग 30 सेंटीमीटर मतलब जहां से वो शुरू किया है ना, हम लोग वहां से ग्राफ बनाते हैं। Say this is the y-axis, लेकिन हम लोग ये ग्राफ में x-axis में टाइम प्लॉट करेंगे। क्यों? देखो यहाँ पर बोला हुआ है फ्लक्स थ्रू द लूप विथ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में बोला। अब मुझे बताओ उसका स्पीड कितना है? तो ये 30 सेंटीमीटर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड्स। तो इसका जो फ्रंट सरफेस यहाँ है, ये 3 सेकंड बाद मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट 3 सेकंड्स में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा ये लूप में, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो फर्स्ट 3 सेकंड्स में कोई फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑलराइट, क्या है राइट बोलो? जो टाइम पे ना जो चीज होता है उसमें फोकस करने का थोड़ा कोशिश करो। गुड। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड्स टाइम लगेगा? You understand that 3 seconds? क्यों? इसका स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड विल गिव यू टाइम। तो ये 3 सेकंड्स लगेगा। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट में 8 सेकंड्स लगेगा, और पूरा लूप बाहर निकलने में 11 सेकंड्स लगेगा। सॉरी 11 नहीं 10 सेकंड्स लगेगा। You understand why 10 seconds? ये लूप का लेंथ कितना है? 20। तो 3 सेकंड्स में वो एंटर स्टार्ट करेगा, और 5 सेकंड्स में वो एंटरिंग क्या करेगा? खत्म करेगा, मतलब पूरा एंटर कर जाएगा। इसका लेंथ कितना है बोलो? 220 सेंटीमीटर ना। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2 सेकंड्स। तो ये 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड एक्स्ट्रा। So 3 seconds में it starts entering this region, 5 seconds में it completes entering, 8 seconds में it starts leaving this area, and 10 seconds में it completes। 5 सेकंड में अंदर घुसेगा 3 से 8 के बीच में कौन सा हाँ
तो 8 सेकंड के बाद यहाँ से ओ अच्छा सॉरी राइट ये 11 सेकंड्स होगा और ये 13 होगा। थैंक यू। ये 11 और ये 13 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड चला गया और फिर 8 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है। सो 330 प्लस 80 इज 110। तो यहाँ पर पहुंचेगा 11 सेकंड से और 11 सेकंड से 13 सेकंड तक वो लूप का बाहर जाएगा, ये रीजन का बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ यू नीड टू प्लॉट द फ्लक्स। फ्लक्स कैसे प्लॉट करेंगे? पहले देखो ये लूप पूरा अंदर आ जाएगा तो इसका फ्लक्स कितना होगा वैल्यू वो निकाल लेना पड़ेगा। फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? v into एरिया। अब cos थीटा यहाँ पर cos 0 डिग्री है। क्यों cos 0 डिग्री है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर को भी हम लोग अंदर या बाहर की तरफ ले सकते हैं। सो इट डज नॉट मैटर दिस b into a cos 0 डिग्री या cos 180 डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि b कितना है और a कितना है। देखो b दिया हुआ है 0.1 टेस्ला और लूप का जो एज लेंथ है ये 20। सो ये एरिया क्या हो जाएगा? 20 into 20। एक्चुअली में इट इज 0.2 into 0.2 बिकॉज़ मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 0.1 into 0. It will be 0.004 वेबर। क्लियर? ये क्या है? This is the maximum flux. This is the maximum flux. फ्लक्स इंक्रीज कहां से करना शुरू हो रहा है? और मान लो ये मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पर हम लोग मार्क कर लिए 0.004। तो 3 सेकंड में 0 रहेगा, 5 सेकंड में वो मैक्सिमम फ्लक्स तक पहुंचेगा। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पहले बताओ ये समझ में आ रहा है? यस और नो? इसके बाद क्या रहेगा? ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कब तक? 11 सेकंड। क्योंकि 11 सेकंड तक वो इसका अंदर है, लेकिन 11 सेकंड के बाद ये बाहर निकलना शुरू करेगा और ये फ्लक्स लीनियरली डिक्रीज करेगा। अच्छा ये देखो लीनियरली इंक्रीज किया, क्यों समझ में आया? व्हाई डिड इट इंक्रीज लीनियरली? ऐसे लीनियरली इंक्रीज नहीं किया, कैसे कर्व लाइन में भी इंक्रीज कर सकता था ना? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए rate of change of flux will remain constant. So rate of change of flux constant रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया? और फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो linearly decrease करेगा up to 13 seconds। हाँ। बढ़ गए, সেই জন্যই তো ফ্লাক্সটা বাড়ছে। এরকম কেন বাড়বে? আরে ফ্লাক্সের এন্টারিং রেটটা তো কনস্ট্যান্ট। ধরো যে অ্যামাউন্ট অফ ভেতরে ঢুকছে সেটাকে আমি x বলছি, তাহলে x আর এই লেন্থ যদি l হয় তাহলে লেন্থ এরিয়া এন্টার ইজ x ইনটু l। তাহলে আমি যদি ফ্লাক্সটা বার করি সেটা যদি b ইনটু a হয় তাহলে d phi dt করলে কি হবে? b আর l কনস্ট্যান্ট, বাইরে বেরিয়ে যাবে, dx dt আসবে তো, তাহলে এই dx dt টা তো v which is constant। তাহলে ফ্লাক্স উইল ইনক্রিজ এট আ কনস্ট্যান্ট রেট। বুঝে আছে? এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করছে বলেই তো ফ্লাক্স ইনক্রিজ করছে, না তো ফ্লাক্স ইনক্রিজ করতো না, যেরকম ছিল সেরকম থাকতো। বুঝা আছে? नेक्स्ट कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को? पापा को बुला ले, बुला लिया? हाँ जल्दी वेट किसका लिखा है? बोल रही थी मुझसे, इससे पहले well the second one is induced EMF. Now how do you find out the induced EMF? You know induced EMF phi is equal to EMF E is equal to minus d phi dt, right? अब बताओ माइनस d phi dt मतलब क्या है? ये ग्राफ का स्लोप हम लोग नीचे प्लॉट करेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए हम लोग को पॉइंट्स चाहिए होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। सो यहाँ पर इट इज 3,0, यहाँ पर इट इज 5,0.00। सो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस बाहर छोड़ दिए, दिस विल बी 0.004 minus 0, sorry हाँ, by 5 minus 3, am I right? So ये क्या हो जाएगा? 0.004 by 2, that is minus 0.002।
सो माइनस क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली ईएमएफ डिक्रीज करें। सो अगर हम लोग यहाँ पर एक ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर दो लाइन बनेगा, ऊपर एक नीचे। 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में नीचे एक लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ईएमएफ इज डी फाई dt, सो उसका रेट ऑफ चेंज तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए ईएमएफ विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम 3 सेकंड टू 5 सेकंड, और उसका वैल्यू कितना आएगा? 0.002। क्लियर? और फिर यहां से यहां तक कुछ वैल्यू आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो यहां से यहां तक कोई ईएमएफ থাকবে না, তাহলে কোন ইএমএফ যদি না থাকে আবার এখানে ইএমএফ থাকবে না। ওভার হিয়ার দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ ডিক্রিজিং, the EMF will be positive plus, and the magnitude of the EMF will remain exactly the same because it is changing in the same interval of time. তাহলে it will be এখান থেকে এখান অবধি there will be a line parallel to x axis, ठीक है? और ये वैल्यू होगा प्लस 0.002। So this is the EMF versus, ऊपर वाला flux versus T है और ये EMF versus time. Alright, so if you want to have a proper correlation, you can also draw some dotted lines to show them that it is happening in this region. ये region में पड़ा। अच्छा, कौन सा समझ नहीं आया होगा? ये बीच में गैप क्यों हुआ? देखो यहाँ, हाँ यहाँ क्या कांस्टेंट है? फ्लक्स कांस्टेंट है ना, और ईएमएफ क्या है? डी फाई dt, तो डी फाई तो नहीं हो रहा है ना फ्लक्स चेंज, सो इसीलिए जीरो है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है, वहाँ पर ईएमएफ जीरो। समझना? सो ये 3 से 5 सेकंड में एक नेगेटिव ईएमएफ रहेगा और 11 to 13 सेकंड में पॉजिटिव ईएमएफ रहेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें और कुछ पूछा है? इंड्यूस्ड करंट इन लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0.1। सो इंड्यूस्ड करंट का एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा, सिर्फ ये लेवल और ये लेवल का वैल्यूज अलग होगा। I इज इक्वल टू कौन सा? ये वाला ये ऊपर, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर प्लस रहता है, ओरिजिन के नीचे माइनस रहता है ना। हाँ, मतलब ये जो है ना, ये मैंने लिखा किस लिए? ये वाले पार्ट के लिए 11 से 13 के बीच। पॉजिटिव क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? द रीजन इज यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा मतलब ये स्लोप नेगेटिव आएगा। देखो ये E1 ले लेते हैं, इसको E2 लिखते हैं। E2 वहां पर क्या होगा? सामने माइनस साइन रहेगा। ये वाला पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज 11,004 और ये है 13,0 ना, तो y2 minus y1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 minus 0.004 by 13 minus 11 आया ना, तो ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये प्लस 0.004 by 2 होगा which is 0.002। अब समझ आया? Is that clear to all of you? And the lastly the current in the circuit. So current in the circuit का वैल्यू क्या आएगा? I is equal to E by R। E का वैल्यू क्या निकला है? 0.002 by रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 0.1, so it will be 0.02। तो करंट का ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस 0.02 एम्पियर होगा और यहाँ पर प्लस 0.02 एम्पियर होगा। Will you be able to make the current का ग्राफ? नाम बोलिएगा, चौपर नाम बोलिएगा।